Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the Sadzef and Hoffman elimination products. Actually, Sadzef and Hoffman elimination products. These products also produced because of the beta elimination reactions. और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए शर्त ये है कि अल्काइल हैलाइड शुड हैव अ बीटा प्रोटॉन इन देम. सो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वी हैव सम ऑफ द alkyl halides where there are more than one beta protons. हमारे यहाँ कुछ अल्काइल हैलाइड्स ऐसे होते हैं जिसमें बीटा प्रोटॉन्स जो है एक से ज्यादा होते हैं. लाइक दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. This is alpha carbon, this is beta, and this is gamma. So here in this alkyl halide, we have two beta protons. Now as a result of beta elimination reactions, beta proton will be replaced to produce the final products. So now the confusion is there. Here we have two beta protons. As a result, two product will be obtained. So the product one is on replacing this proton and this alkyl group. अगर हम एक यहाँ से प्रोटॉन को इस बीटा कार्बन से और इस अल्फा कार्बन से हैलाइड ग्रुप को हम रिप्लेस करते हैं, then we will be able to produce the product that is this one. Mean कि as a result of replacing beta proton from the first carbon atom or terminal carbon atom, we will be able to yield terminal alkene. Terminal alkene as a result of beta elimination reactions. लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे यहाँ ये भी बीटा प्रोटॉन है और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो एज ए रिजल्ट जो है यहाँ से भी प्रोटॉन और हेलोजन ग्रुप जो है रिप्लेस हो सकता है. मीन कि यहाँ से एक प्रोटॉन, यहाँ से एक प्रोटॉन यहां से एक प्रोटॉन रिप्लेस होगा और यहां से हेलोजन रिप्लेस होगा. तो एज ए रिजल्ट वी विल बी एबल टू ऑब्टेन अनदर प्रोडक्ट. तो देन वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. एक प्रोटॉन रिप्लेस हुआ, एक रहता है, यहां से हेलोजन रिप्लेस होगा और यहां से ये प्रोडक्ट बनेगा. सो इसे कहते हैं इंटरनल अल्कीन. So Sadzef and Hoffman product formation will be possible in those cases where there are more than one beta proton with alkyl halides. So we will be able to produce two alkenes, terminal alkenes and internal alkenes. So first of all is Sadzef product. This was the background of Sadzef and Hoffman elimination product. To have the possibility of formation of Sadzef and elimination will be in such cases where there are more than one terminal, where more than one beta proton with the alkyl halides. So now, what are Sadzef product? Here in these two product, two alkene, terminal internal alkene. The one alkene is said to be as the terminal alkene is said to be as Sadzef product, while the terminal alkene is said to be as the
हॉफमैन प्रोडक्ट। तो सेट इज ए प्रोडक्ट वो है when there are more than one beta proton with alkyl halides, the one product that results the formation of a product that have more alkylating substituent. ये दो क्या देखें, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसमें अल्काइलेट सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ज्यादा है, या in other words set is a product is the one where we will replace that beta proton which results the formation of internal alkene. तो set is a product वो है जिसमें आप वो बीटा प्रोटॉन रिप्लेस करते हैं जो कि इंटरनल अल्कीन फॉर्मेशन को रिजल्ट करते हैं। जबकि लाइक जैसा कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट वो अल्कीन जिसमें वो अल्काइल हैलाइड जिसमें एक से ज्यादा बीटा प्रोटॉन मौजूद हो, लेकिन हॉफमैन प्रोडक्ट्स जो है रिजल्ट करे टर्मिनल अल्कीन को, यानी आप वो प्रोटॉन रिप्लेस करें जिससे टर्मिनल अल्कीन प्रोड्यूस हो, तो आप समझ लीजिएगा कि ये हॉफमैन elimination product है। Now the question arises here, which one will be the major product, which one will be the major product, or which one will be the actual product, or says the product will be the actual or major product, or the Hofmann product will be the major product. So this will depend upon the living group. लाइक देख आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास when alkyl group acting as a leaving group, अगर आपका when halogen acting as a leaving group, तो आपके पास फिर कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, फिर उस सूरत में said the product will be the major product if alkyl halide halogen present with the देखिए इस केस में like in this example, इस एग्जांपल में चूंकि हेलोजन एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप, सो इस केस में said is a product will be the major product। like देख आप देख सकते हैं CH3 और यहां से रिप्लेस होगा क्योंकि that will be the major product which results the formation of CH3. So this is the major product, and the major product mean कि its concentration will be higher. वैसे तो दोनों प्रोडक्ट बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनल अल्कीन भी बनेगा, टर्मिनल अल्कीन भी बनेगा, लेकिन इंटरनल अल्कीन का जिसको आप सेड प्रोडक्ट कहते हैं उसका कंसंट्रेशन हाई होगा, एंड दैट इज सेड टू बी एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये है कि इस अल्काइल हैलाइड के अंदर या इस सबस्ट्रेट के अंदर हेलोजन एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप, और इस रिएक्शन के दौरान हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है उसमें कोई शक नहीं दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट जो है दैट इज हैविंग 5% कंसंट्रेशन एंड दैट इज सेड टू बी एज द माइनर, एंड दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेजर कहलाएगा, ये माइनर कहलाएगा। तो इसी तरह अब हम जाते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट कब मेजर होगा और फिर सेड इज माइनर होगा। उसके लिए ये है इसके लिए ये है कि अगर आप लोगों के पास दो बीटा प्रोटॉन्स हैं लेकिन लिविंग ग्रुप कोई चार्ज्ड ग्रुप है, लिविंग ग्रुप एक्टिंग कोई सा चार्ज ग्रुप एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप, लेट्स सपोज लाइक S पॉजिटिव CH3 होल 2। ये आप देखें, अगर ये वाला जो है ये वाला ग्रुप जो है वो क्या है, क्या ये चार्ज लिविंग ग्रुप है।
ठीक है, और लार्जर भी है। अगर ये मेरे पास है और मेरे पास जैसा कि आप देख सकते हैं 2 बीटा प्रोटॉन्स भी है, तो उस सूरत में भी 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इंटरनल और टर्मिनल की दोनों बनेगी, लेकिन इस सूरत में चूंकि मेरे पास चार्ज्ड लीविंग ग्रुप है, तो उस सूरत में Hofmann product will be the major while Serge product will be acting as the minor product. तो आप देख सकते हैं CH3 CH2 एंड CH यहाँ से लीविंग रिप्लेस होगा और यहाँ से प्रोटॉन रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाती है। सो ये जो है ये चूंकि टर्मिनल एल्कीन है और दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। फिर इस यहाँ पे जो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन है वो हाई होगा, और ये मेजर प्रोडक्ट इस सूरत में ये हॉफमैन प्रोडक्ट है। ये कौन सा है? हॉफमैन प्रोडक्ट जो है ये मेजर प्रोडक्ट है। इस केस में ये वाला जिसको मैंने इंटरनल लिखा हुआ था, तो दैट इज ए प्रोडक्ट एंड दैट विल बी, बट इस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, जबकि दूसरा जो प्रोडक्ट मेरे पास बन रहा है ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट इंटरनल अल्कीन, इसका परसेंटेज अराउंड अबाउट 20%, ये माइनर होगा और ये सेडिज़ेब प्रोडक्ट कहलाएगा। तो सेडिज़ेब प्रोडक्ट ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास चार्ज्ड लिविंग ग्रुप है किसी सबस्ट्रेट के अंदर और इसमें एक से ज्यादा बीटा प्रोटॉन मौजूद है, तो उस सूरत में 2 प्रोडक्ट्स बनेगी, कोई शक नहीं। लेकिन एक हॉफमैन होगा, एक मेजर सर्जिफ होगा, लेकिन इस सूरत में हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी द मेजर एंड सर्जिफ प्रोडक्ट विल बी द माइनर। और दूसरा जो है आप समझ चुके हैं कि अगर हेलोजन एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप इन अ सबस्ट्रेट, तो फिर उस सूरत में सर्जिफ प्रोडक्ट आप लोगों का मेजर होगा और हॉफमैन प्रोडक्ट आप लोगों का माइनर होगा। बाकी हॉफमैन प्रोडक्ट और सेडिज़ेब प्रोडक्ट आप समझते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सेडिज़ेब प्रोडक्ट वो है कि अगर किसी सबस्ट्रेट के अंदर एक से ज्यादा बीटा प्रोटॉन्स है, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में आप एक लिविंग ग्रुप को एक बीटा प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं, तो आपको आपका एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन जाता है। तो अगर आप लोगों के पास एक से ज्यादा बीटा प्रोटॉन्स है, तो कंफ्यूजन ये है कि कौन सा प्रोटॉन रिप्लेस होगा बीटा प्रोटॉन और आपको प्रोडक्ट मिलेगी। तो इसका आंसर ये है कि दोनों प्रोटॉन रिप्लेस होंगी और दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट को सेडिज़ेब कहलाएगा, दूसरे प्रोडक्ट को हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाएगा। सेडिज़ेब प्रोडक्ट वो है जिसमें से आप वो बीटा प्रोटॉन रिप्लेस करें दैट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल अल्कीन, जबकि हॉफमैन प्रोडक्ट वो है जिससे आप वो वाला बीटा प्रोटॉन रिप्लेस करें जिससे टर्मिनल अल्कीन फॉर्मेशन हो। टर्मिनल अल्कीन और इंटरनल अल्कीन आप समझ सकते हैं, जिसके बिल्कुल कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड हो तो टर्मिनल अल्कीन कहलाता है, और जिसमें 2 और 3 और मतलब दरमियान में कोई डबल बॉन्ड हो तो वो इंटरनल अल्कीन्स कहलाता है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे एंड उम्मीद है स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि व्हाट आर सेडिज़ेब एंड हॉफमैन एलिमिनेशन